morning dear students. Students, in the previous class we have started with the topic of RNA, that is ribonucleic acids. We said that ribonucleic acids will be ranging, or RNA will be ranging from 70 to 12,000 nucleotides. RNA can also be found as the genetic material in some of the viruses. In most of the cases, in the case of eukaryotic cells, the RNA is having the copy, or you can say it is a product of transcription of the DNA. So genetic information present with the DNA is being transferred to RNA for further protein synthesis, and that is the main role of the RNA. So RNA, instead of storing the genetic information, its major role is catalytic. That is, it will be doing several other activities within the cell, not just storing the information. Now this RNA was of three main types, that is mRNA, tRNA and rRNA, out of which we have already discussed about the rRNA, which is the ribosomal RNA. Ribosomal RNA will be slightly different in prokaryotes and eukaryotes, and it was of different types that we have looked upon in the previous class. Now we are moving on towards the next type of RNA, which is the tRNA, also known as the transfer RNA. Now this transfer RNA is also known as soluble RNA, or you can say sRNA. The another name for transfer RNA is the soluble RNA or the sRNA. It is the smallest of all the types of RNAs. So it is smallest in size. It is smallest in size and hardly has 73 to 93 nucleotides. The number of nucleotides present are just 73 to 93. जैसे rRNA का फंक्शन क्या था कि दे कंबाइन विद द प्रोटीन टू मेक द राइबोसोम्स. rRNA का फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं और तब जाके बनता है राइबोसोम्स. और जो राइबोसोम्स हैं उन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स आर द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स. वैसे ही tRNA जो है, its main function is to carry different amino acids and bring them to ribosomes for the protein synthesis. क्योंकि प्रोटीन्स कैसे बनेंगे जब एमिनो एसिड्स होंगे तो, और यही एमिनो एसिड की जो सीक्वेंस है कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, तो वो एमिनो एसिड्स वन बाय वन जो लेके आता है, दैट इज द tRNA. ओके, सो देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ tRNA प्रेजेंट. Different types of tRNA are present in the cell, but all the tRNA has the same function. The function is to carry the amino acid and bring it to the ribosomes. That is the function of the tRNA. Now this tRNA is having presence of some unusual bases. tRNA जो है ये होता तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, but it also gets folded due to presence of the unusual bases. unusual bases मतलब usual bases कौन से होते हैं, हम बोलते हैं guanine, cytosine, right, uracil, ये usual bases है. But sometimes there are modification in the nitrogen bases, and such modified nitrogen bases are present in the structure of the tRNA. So there is presence of unusual nitrogen bases. That is presence of unusual nitrogen bases, and these unusual nitrogen bases are ribothiamidine, pseudouridine, dihydrouridine, inosine. These four are the
unusual nitrogen bases present in the structure of the tRNA. Due to presence of this unusual nitrogen bases, sometimes what happen is that this tRNA gets coiled or folded, मतलब single stranded जो tRNA है वो खुद ही fold हो जाता है to give a complex structure which is 2-dimensional or a 3-dimensional structure. So due to presence of such bases, the single stranded tRNA gets folded or coiled to form L-shaped structure or L-shaped form, or another word is clover leaf shaped structure. या तो tRNA जो है वो L शेप हो जाता है या तो फिर क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर हो जाता है जो एक 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है tRNA का. ठीक है, तो जो बेसेस होंगे दे आर गोइंग टू पैर अप विथ ईच अदर एंड देयरफॉर दे रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर. So tRNA, when we talk about the structure of tRNA, there is presence of 5 main sites or 5 main regions are present. So in the structure of tRNA, there is presence of the first thing that is anticodon loop. Right? tRNA के स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलेगा? Anticodon loop, T sin C loop, DHU loop, and the amino acid binding site, and this structure is known as the variable arm. एक tRNA के स्ट्रक्चर में 5 मेजर साइट्स होती हैं जो डिफरेंट साइट्स है. तो ये जो 5 साइट्स हैं जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ वो है एंटीकोडॉन लूप, और ये है एंटीकोडॉन आर्म, ये है T sin C लूप और ये है T sin C arm, DHU loop and DHU arm, and this is the amino acid binding site. So first we are going to describe about what is anticodon loop. Anticodon loop जो है उसमें होते हैं 7 bases. There is presence of like this 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So there are 7 nitrogen bases that will be present in the anticodon loop. अब ये जो 7 nitrogen bases हैं उनमें से भी 3 bases are going to form a 3 nucleotide sequence जिसे कहा जाता है codon. Okay, out of which 3 bases recognize the codon on the mRNA. They recognize the codon on the mRNA. अब mRNA पे codon मतलब क्या? mRNA जो होता है उनमें 3 न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेसिस का सेट होता है. ये 3 नाइट्रोजन बेसिस को साथ में कोडॉन कहा जाता है. ये कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एंटीकोडॉन की. रिकॉग्नाइज करना मतलब क्या? ये फॉर एग्जांपल mRNA जो है उस पे 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स लोकेटेड है वो है AUG. जस्ट फॉर एन एग्जांपल. तो एंटीकोडॉन जो होगा वो कौन सा होगा? तो एंटीकोडॉन U, A and C will be recognizing this AUG. तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को कोडॉन कहा जाता है, और ये कोडॉन को रिकॉग्नाइज करना किसका काम है? एंटीकोडॉन का काम है, जो किसके पास होता है? tRNA के पास होता है. इस एंटीकोडॉन को कोडॉन रिकॉग्नाइज करना इसीलिए जरूरी है because a set of 3 nucleotides specify one amino acid. Set of 3 nucleotides specify one amino acid. मतलब अगर ये 3 कोडॉन है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, तो इन 3 से रिलेटेड एक एमिनो एसिड होगा जिसे लेके आने की जवाबदारी किसकी रहती है?
It is the responsibility of the tRNA. Okay, so that is the anticodon loop. टोटल 7 बेसिस होते हैं, उनमें से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? कोडॉन विच इज प्रेजेंट ऑन द mRNA. सेकेंडली उसके अपोजिट जो साइट है दैट इज एमिनो एसिड. ए रिप्रेजेंट्स एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट. एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट जो है, ऑब्वियसली द नेम इंडिकेट्स, here is the site where amino acid is going to attach. Amino acid is going to attach, ठीक है. And it is represented at 3 prime end पे it is represented as CCaOH and 5 prime end it is represented by simply a nitrogen based guanine. मतलब जो भी एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है उसके 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होगी? C, C and A with the hydroxyl group और 5 प्राइम एंड पे हमेशा क्या होगा? G. इन दोनों को, एंटीकोडॉन लूप को और एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट को क्या कहा जाता है? रिकॉग्निशन साइट्स कहा जाता है. दे आर नोन एज द रिकॉग्निशन साइट्स ऑफ द tRNA. ठीक है. एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट पे कौन सा एमिनो एसिड बाइंड होगा? तो मैंने कहा कि देयर आर 100 टाइप्स ऑफ tRNA, राइट. हर एक tRNA के पास कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होंगे एंटीकोडॉन लूप में जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू व्हाट? टू द कोडॉन विच इज प्रेजेंट ऑन द mRNA. तो ये जिस भी एमिनो एसिड को स्पेसिफाई करते होंगे वो एमिनो एसिड कहाँ पे अटैच होगा? इट विल अटैच एट द एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट. फॉर एग्जाम्पल AUG इज फॉर द एमिनो एसिड मिथियोनिन. तो यहाँ पे कौन सा एमिनो एसिड बाइंड होके आएगा? Methionine will come. And where it is going to come? It is going to come at the ribosomes. क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होने वाला है? राइबोसोम्स पे. इसीलिए tRNA को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है. अडेप्टर का मतलब है कि यहाँ से एमिनो एसिड लेके राइबोसोम तक लेके आने का काम जो करता है वो tRNA करता है. So it is called adapter. The third site is the T-Sin-C loop. T-Sin-C loop. Here also there are 7 bases. 7 नाइट्रोजन बेस होते हैं T-Sin-C loop में भी. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are 7 nitrogen bases and presence of ribothiamidine and pseudo-uridine. यहाँ पे 2 नाइट्रोजन बेसिस जो है वो अनयूजुअल है. एक है pseudo-uridine, राइट, जिससे साइन से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज pseudo-uridine. एंड सेकेंड इज ribothiamidine, जिसे RT ऐसे भी लिखा जाता है. So ribothiamidine and pseudo-uridine are the unusual bases. T-Sin-C loop helps in attaching with the ribosome. राइबोसोम के साथ जो अटैचमेंट में हेल्प करता है वो है T-Sin-C loop. The fourth one is known as DHU loop. DHU loop में जो unusual base है that is dihydrouridine. 8 to 14 bases and the base which is present is dihydrouridine. It has amino acyl synthetase activity. Amino acyl synthetase activity जिसका मतलब है कि जब tRNA एमिनो एसिड को कैरी करता है तो tRNA हैज टू अटैच विद द एमिनो एसिड. उसके अटैचमेंट में जो हेल्प करता है वो है एमिनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम. तो ये एंजाइम की जो एक्टिविटी है दैट इज प्रेजेंट विद द DHU आर्म. DHU आर्म इज द लार्जेस्ट आर्म आउट ऑफ ऑल ऑफ देम एंड DHU आर्म में 8 से लेके 14 तक बेसिस होते हैं. ठीक है, बाकी सब में 7 बेसिस है बट DHU जो है वो थोड़ा बड़ा होता है और उसमें 8 to 14 बेसिस होते हैं एंड इट हैज अ स्पेसिफिक एक्टिविटी जो हम आगे ट्रांसलेशन जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ द tRNA
has to be activated by the attachment of the amino acid, and that activity is amino acyl synthetase activity. Lastly जो बच जाता है वो है वेरिएबल आर्म. तो वेरिएबल आर्म जो है इट इज लोकेटेड बिटवीन टी साइन सी लूप एंड एंटी कोडॉन लूप. इन दोनों के बीच में लोकेटेड होता है, पर वेरिएबल आर्म का फंक्शन अभी भी नोन नहीं है और वो सारे टीआरएनए में प्रेजेंट नहीं होता. वेरिएबल आर्म इज प्रेजेंट ओनली इन सम ऑफ द टीआरएनएस एंड what function it exactly plays is still unknown. So mainly you will have to remember the anticodon loop and the amino acid binding site. Secondly, T side C loop and DHU arm. This shape of the tRNA is called clover leaf shape, which is the two-dimensional structure of the tRNA. बाकी tRNA भी single stranded ही होता है, पर वो due to unusual basis it gets coiled to form this unusual structure. tRNA को अडेप्टर भी कहा जाता है. अडेप्टर क्योंकि वो एमिनो एसिड को कैरी करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम्स. साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. Which tRNA will carry which amino acid, that totally depends upon the nucleotide sequence of the anticodon loop. Is it clear? So next we are going to discuss about the mRNA. So after the structure of the tRNA, that is the transfer RNA, let us talk about the next type of RNA, which is the mRNA or the messenger RNA. The messenger RNA is actually a long RNA and it is about 2 to 5% of the total RNAs. So maximum amount of RNA present is rRNA, which is 70 to 80%. Nearly 15% was the tRNA and 2 to 5% of the total RNA will be the mRNA. So first thing, it is a long RNA and it constitutes 2 to 5% of the total RNA present in a cell, that is mRNA. The mRNA is mainly for carrying the information from the DNA for the synthesis of the polypeptide. मतलब polypeptide का जो synthesis होने वाला है that is mainly through what? Through the mRNA. So mRNA it carries the genetic information from the DNA for synthesis of the polypeptide. So for polypeptide synthesis, the information is present with whom? mRNA. mRNA is actually formed from DNA only by transcription. जो पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनती है, फिर उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं और फिर जाके फंक्शनल mRNA फॉर्म होता है. और यही फंक्शनल mRNA राइबोसोम्स के पास जाता है और वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी होती है. राइट? सो mRNA attaches with the ribosomes for protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसके लिए mRNA को कहां पे जाना पड़ता है? It has to go to the ribosomes for the protein synthesis. But when it has to go to ribosomes, why only mRNA and not tRNA and rRNA? rRNA तो राइबोसोम फॉर्मेशन में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि tRNA जो है that is going to bring the specific amino acids on the basis of the sequence of nucleotides on the mRNA. So mRNA is known as informational RNA. It is known as
informational RNA, and this information is present in the form of base sequence of the nucleotides. हमने ये समझ लिया कि mRNA जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होगा, क्योंकि mRNA के पास वो इंफॉर्मेशन है जो उसने डीएनए से ली है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। पर ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वही इंफॉर्मेशन है। 3 nucleotides together form a codon and each codon specifies one amino acid. Set of 3 nucleotides. Set of 3 nucleotides is called as codon. 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को क्या कहा जाता है? कोडॉन कहा जाता है। एंड कोडॉन, each codon specifies one amino acid. हर एक कोडॉन क्या स्पेसिफाई करता है? एक एमिनो एसिड स्पेसिफाई करता है, जिसका मतलब ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल ये एमआरएनए है और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मान लीजिए ए यू जी, जी जी सी, सी यू जी, यू ए जी, ऐसे कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स है। तो सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कहा जाएगा? एक कोडॉन। मतलब ए यू जी इज कोडॉन नंबर 1, जी जी सी इज कोडॉन नंबर 2। तो ये क्या है? ये एमआरएनए है। तो एमआरएनए पे 3 न्यूक्लियोटाइड के जो सेट है, हर एक सेट को कोडॉन कहा जाता है। और हर एक कोडॉन जो है इट इज फॉर 1 एमिनो एसिड, इट कोड्स फॉर 1 एमिनो एसिड। पर ये एमिनो एसिड आता कहां से? तो एमिनो एसिड को यहाँ पे लाने का काम कौन करेगा? टीआरएनए। Who is going to bring that specific amino acid? जैसे कि AUG है तो it codes for the amino acid methionine. तो methionine लाने का काम कौन करेगा? tRNA. Okay. So each codon codes for or specifies one amino acid, and this amino acid is brought to the mRNA by tRNA. क्योंकि tRNA के पास क्या था? एंटीकोडॉन। अभी हमने पढ़ा टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन होता है, मतलब टीआरएनए विल हैव एयूजी के ऑपोजिट उसके पास क्या होगा? यूएसी। और यूएसी एयूजी कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए पहला एमिनो एसिड कौन सा आएगा? मिथियोनाइन, राइट? तो ये हम एग्जांपल के तरह पे ले रहे हैं कि हर एक कोडॉन एक एमिनो एसिड स्पेसिफाई करता है और वो एमिनो एसिड को लेके आने की जिम्मेदारी टीआरएनए की होती है। तो टीआरएनए का जो एंटीकोडॉन लूप है वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा कोडॉन है एमआरएनए में, और उसके बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री एमिनो एसिड लेके वहां पे अटैच करता है एट द राइबोसोम। दैट इज हाउ वन आफ्टर अनदर एमिनो एसिड्स आर बीइंग प्लेस्ड। और एमिनो एसिड एक के बाद एक जैसे आते जाएंगे वैसे क्या बनता जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होता जाएगा, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। This sequence is known as the genetic code. इसे क्या कहा जाता है? जेनेटिक कोड कहा जाता है। जेनेटिक कोड मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच स्पेसिफाई 1 एमिनो एसिड। ऐसे पूरी सीक्वेंस जो है इसे क्या कहा जाएगा? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड किसके पास होता है? एमआरएनए के पास। और ये जेनेटिक कोड किस लिए यूज होता है? टू मेक अ पॉलीपेप्टाइड। अगर एमआरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें जाए तो एमआरएनए is having, this is the structure of mRNA। तो अब mRNA में देख सकते हो एक तरफ होगा 5 प्राइम एंड और एक तरफ होगा 3 प्राइम एंड। mRNA कैसे बना है? तो mRNA डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनता है। पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है और फिर फंक्शनल mRNA बनता है, ठीक है? तो पहली जो सीक्वेंस होगी that will be what? The very first sequence that is going to be the 5 prime capping। क्योंकि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है? कैपिंग होता है, फिर जाके
mRNA फंक्शनल होता है, तो कैपिंग होगा. सो दिस विल बी द 5 प्राइम कैप. 5 प्राइम कैप मतलब दिस एंड इज गोइंग टू बी methylated guanine. What is going to be there? Methylated guanine. Then after there is a small site of non-coding region. थोड़ी सीक्वेंस होंगी जिन्हें कहा जाएगा नॉन कोडिंग, और नॉन कोडिंग के बाद जो साइट है दिस इज गोइंग टू बी द इनिशिएशन साइट. व्हाट इज इट गोइंग टू बी? इनिशिएशन साइट. उसके बाद पूरा जो एमआरएनए है दैट इज द कोडिंग रीजन. कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे. अगेन एट द एंड देयर विल बी व्हाट? टर्मिनेशन साइट, राइट. टर्मिनेशन कोडाउन होगा, इनिशिएशन कोडाउन होगा, टर्मिनेशन कोडाउन होगा. अगेन देयर विल बी सम ऑफ द सीक्वेंसेस जो कॉपी नहीं होने वाली, उन्हें कहा जाता है अगेन नॉन कोडिंग साइट्स. इन्हें नॉन कोडिंग कहा जाता है. आगे जो होता है उसे लीडर और पीछे जो होता है उसे ट्रेलर कहा जाता है. लीडर सीक्वेंसेस एंड ट्रेलर सीक्वेंसेस. लीडर और ट्रेलर सीक्वेंसेस हर एक एमआरएनए में नहीं होते. लीडर और ट्रेलर सीक्वेंसेस वो होते हैं जो अनवांटेड सीक्वेंसेस होते हैं जिनका प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं होता. और उसके बाद लास्ट जो 3 प्राइम एंड है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉली ए टेल. जो आपको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में याद होगी कि 5 प्राइम एंड पे मिथाइलेटेड ग्वानिन और 3 प्राइम एंड पे क्या होता है? पॉली ए टेल. बीच में जो सीक्वेंस है वो है कोडिंग सीक्वेंस जिसका ट्रांसलेशन होगा और जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो 5 प्राइम एंड है, मैं यहाँ पे वापस मेंशन कर रही हूं, दैट इज गोइंग टू बी कैपिंग ऑफ मिथाइलेटेड ग्वानिन. सॉरी, कैपिंग ऑफ मिथाइलेटेड ग्वानिन नहीं, कैपिंग बाय मिथाइलेटेड ग्वानिन. उसके बाद क्या आ गया? अ स्मॉल यूटीआर. यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन. इट इज अ स्मॉल अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब जिसका कुछ ट्रांसलेशन नहीं होने वाला, जो प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं आने वाला, वो साइट है. ये छोटी सी जो साइट है. उसके बाद आती है इनिशिएशन साइट. तो इनिशिएशन सीक्वेंस हमेशा एमआरएनए कहां से स्टार्ट होता है? AUG. AUG is always going to be the initiation site. Okay, that is the first site where the translation is going to begin. हमेशा ट्रांसलेशन कहां से स्टार्ट होता है? AUG से ही होता है. उसके बाद कोडिंग रीजन. कोडिंग रीजन मतलब कोडिंग साइट जिसका ट्रांसलेशन होने वाला है और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होने वाला है, बनने वाला है जिससे पॉलीपेप्टाइड, राइट. यहाँ पे कोडॉन्स होंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के सेट होंगे जिन्हें कोडॉन्स कहा जाता है. फिर आ जाता है टर्मिनेशन. टर्मिनेशन जहां पे ट्रांसलेशन खत्म हो जाता है. टर्मिनेशन साइट पे कोडॉन होता है UAA, UAG एंड UGA. अगर इन तीनों में से कोई भी कोडॉन है लास्ट में टर्मिनेशन साइट पे, तो उसका मतलब कि ट्रांसलेशन वहां पे स्टॉप हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनना बंद हो जाएगा. मतलब पॉलीपेप्टाइड इधर से लेके इधर तक की बनेगी. 3 न्यूक्लियोटाइड मतलब पहला एमिनो एसिड, सेकेंड एमिनो एसिड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, ऐसे करते करते टर्मिनेशन पे जब भी एंजाइम को ये साइट, ये कोडॉन मिलेंगे UAA, UAG और UGA, तो टर्मिनेशन हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनना स्टॉप हो जाएगा. और लास्ट जो है अगेन नॉन कोडिंग रीजन, उसे वापस से क्या कहा जाएगा? UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन. और लास्ट जो 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड, वहां पे वापस क्या आ जाएगा? पॉली ए टेल. हमें ये तो पता ही है कि कैपिंग क्यों किया जाता है और टेलिंग क्यों किया जाता है? टू प्रोटेक्ट द एमआरएनए. एमआरएनए की लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होती है, ऑफ फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स. एक बार इससे प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया, फिर एमआरएनए का कोई रोल रहता नहीं है. इसलिए एमआरएनए जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा once a polypeptide has been synthesized from this mRNA. Again and again the polypeptide is not to be same synthesized, उसके लिए वापस नया mRNA फॉर्म होगा. So that is the most important topic, structure of tRNA and structure of mRNA. In the next lecture we will begin with the topic of genetic code.